Hello student, how are you? Okay. Today I start one chapter, class 6th ICSE chemistry, element, compound and mixture. Okay. So our chapter name is element, compound and mixture. Okay, so we know that the substance are made up of matter. In this chapter we will learn that matter is also classified into two category, that is pure and impure. And the pure substance is a kind of matter. जो pure substance है वो kind of matter होता है which consists of same type of particles that cannot be separated into its component or by a physical mean. ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस हमारे आसपास पाया जाता है वो सारे मैटर से बनते हैं. और मैटर जो है क्लासिफाइड होता है टू कैटेगरी, प्योर एंड इम्प्योर. ओके, अगर प्योर में जाते हैं तो एलिमेंट होता है, एंड अगर इम्प्योर का क्लासिफिकेशन होता है तो कंपाउंड एंड मिक्सचर होता है. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट एलिमेंट. सो व्हाट इज़ दिस एलिमेंट? ओके, here in the screen the definition of element. Look at the screen. So element are pure substance. Okay, we can neither be broken down into further simpler substance nor formed for two or more simpler substance by any physical mean, physical or chemical mean. Or we can say that element is a substance whose atoms all have same number of proton. Okay, और जो substance different definition are there, and सो एलिमेंट जिसको हम लोग, जो प्योर होता है, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में, किसी भी फिजिकल और केमिकल मीन पे. जितने भी सब्सटेंस हमारे पूरे अर्थ में हैं केमिकली मेड अप ऑफ आइदर वन एलिमेंट और टू और मोर एलिमेंट. So far 120 more than 120 elements are known, and उसमें से 92 elements are naturally occurring in the earth crust, and the rest have prepared artificially by man, and some elements are artificially created by scientists, that is radioactive elements. Okay, तो यहाँ पे प्योर का क्लासिफिकेशन हुआ. तो एलिमेंट्स क्या है जो फर्दर क्लासिफाइड जो सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन नहीं हो सकता. ओके, और जो प्योर सब्सटेंस है. अब नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. ऑल ऑफ यू नो, अभी मैंने बताया, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ particles, or elements may occur naturally or may be prepared artificially. Okay, or element exist in all the three physical state. Some examples of solid, liquid or gaseous element. जैसे solid element की बात करें तो gold, silver, iron, copper, aluminium, zinc, sodium, कार्बन, आयोडीन एक्सेट्रा. एंड लिक्विड एलिमेंट्स मर्क्यूरी, ब्रोमाइन. एंड गैशियस पे जाते हैं तो बहुत सारे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन एक्सेट्रा. ओके, all are this element. Okay, now classification. When we go through the classification of elements, then elements classified into three: metal, non-metal and metalloid. ठीक है. So metal generally are hard, solid at room temperature and have lustrous. चमकदार होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है. They are malleable, ductile, and they have high boiling point and melting point and good conductor of electricity. नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें नहीं होती है नॉन मेटल में. वो सॉलिड है मेटल, तो नॉन मेटल होता है
क्या, वो गैशियस होता है। ओके, अगर डेंसिटी पे जाएँ तो मेटल हाई डेंसिटी है तो नॉन मेटल लो डेंसिटी होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का तो नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। डक्टाइल होता है तो नॉन मेटल का नॉन डक्टाइल होता है। मैल्यूबल होता है तो नॉन मेटल का नॉन मैल्यूबल होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल का, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। So now what are metalloid? Metalloid are a group of element that lies in between the metal and non-metal, जो metal और non-metal के बीच में पाया जाता है। According to their property, they show the properties that are some extent metal as well as non-metal. Okay, example bromine, silicon, germanium, arsenic, etc. Now one more classification are there: metal, non-metal, metalloid and noble gas, that is noble gas or inert gas. So this inert gas are what? Element that do not react chemically with other elements because they are stable होते हैं वो। इसके में एग्जाम्पल था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑल दिस आर इन द कैटेगरी ऑफ नोबल गैस और इनर्ट गैस। ओके, नाउ कम टू द डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस पे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो दिस लुक एट द स्क्रीन हियर, वन स्लाइड आर देयर, वन स्लाइड इज़ देयर। अपीरेंस तो क्या होगा, मेटल का शाइनी होगा, नॉन मेटल का डल होता है। हार्डनेस अगर देखें तो मेटल बहुत हार्ड होता है, मगर नॉन मेटल क्या होता है, ब्रिटल होता है, और वी कैन से इट सॉफ्ट ऑल्सो। मैल्यूबल अगर देखें तो मैल्यूबल और मैल्यूबिलिटी। अब व्हाट इज़ दिस मैल्यूबल प्रॉपर्टी? स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन केयरफुली। certain substance can be hammered or rolled into thin sheet without breaking the substance are called malleable. What is this malleability? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको जब हम हैमर्ड करते हैं, मतलब हथौड़ी से ठोकते हैं या रोल्ड करते हैं, उसके ऊपर रोलर चलाते हैं, तो वो एक थिन शीट में चेंज हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग। दिस प्रॉपर्टी और दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड malleable substance. The best examples are gold, aluminum, silver and copper. Okay, now ductility. Metals are ductile but non-metals are non-ductile. So what is this ductility? Ductility, this is a property certain substance can be drawn into. जैसे ही वो hammered और roll करने से thin sheet में change होता है, वैसे ही डक्टिलिटी एक थिन वायर में चेंज हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड डक्टाइल। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। जैसे कि गोल्ड जो है बेस्ट डक्टाइल प्रॉपर्टी कैरी करता है, इसीलिए 1 ग्राम गोल्ड से हम 10 मीटर लंबी वायर फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए वो ज्वेलरी में काम आता है। ओके, तो डक्टाइल जैसे गोल्ड का होता है, सिल्वर का, कॉपर का और प्लेटिनियम ऑल्सो, है ना। जिस ऐसे मेटल जिसको हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं विदाउट ब्रेक डाउन, दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। हीट कंडक्शन मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, हीट का कैरी होना, हीट लेके कैरी करना। तो मेटल जो होता है वो गुड कैरियर होता है हीट का, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। मगर नॉन मेटल सपोज एयर से थोड़ी हीट कैरी होगा, तो एयर नॉन मेटल है। एयर मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल दिस आर व्हाट नॉन मेटल, तो वो बैड कंडक्टर है। मगर मेटल में अगर देखें हम लोग, कि अगर हम लोग देखें जिंक, आयरन, तो वो गुड हीट कंडक्शन करता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो है गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर है। स्टेट में देखते हैं तो मेटल्स आर सॉलिड और नॉन मेटल्स आर सॉलिड भी होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं, गैशियस भी होते हैं। और डेंसिटी पे देखते हैं तो ये हायर और ये लोअर, मतलब डेंसिटी जो मेटल की हाई होती है क्योंकि वो सॉलिड होता है, ऑब्वियस उसमें जो टाइटली पैक्ड होते हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और लोअर होते हैं इसकी डेंसिटी क्योंकि ये गैस और लिक्विड
के फॉर्म में होता है. नाउ लुक हियर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी. हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको इस पीरियोडिक टेबल पे ही क्लासिफाइड किया गया है. हियर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, ऑल दिस आर मेटल्स. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इधर फर्स्ट पीरियड है ना. देन इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये फ्लोराइड, ऑल दिस आर व्हाट, नॉन मेटल. जो ब्लूइश पार्ट दिख रहा है डेट इज़ नॉन मेटल. एंड जो बीच का मिडिल का पार्ट दिख रहा है जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट लिखे हुए हैं ये होता है मेटलॉइड. क्लियर. नाउ अगर सिम्बॉल्स पे आते हैं, सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स, तो सिम्बॉल्स इस तरह से होते हैं. एलिमेंट्स जो मेटल होते हैं, मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फर्स्ट 2 लेटर्स से सिंबल होता है. जैसे एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये उसके फर्स्ट 2 लेटर से. या फिर उनके सिंबल्स कैरी किए जाते हैं उनके लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर से, ठीक है. और या फिर फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, या फिर किसी एलिमेंट के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से भी होता है, या फिर फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट, या फिर उसके लैटिन नेम के फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट. जैसे लैटिन नेम मैंने बोला तो सोडियम है तो न्यूटेटियम, तो उसका लैटिन नेम है न्यूटेटियम और उसका जो सिंबल है वो Na है. वैसे ही अगर वो कार्बन देखते हैं तो कार्बन का C होता है क्योंकि कार्बन का C फर्स्ट अल्फ़ाबेट है. हाइड्रोजन का H होता है, आयोडीन का I होता है. ओके. जितने भी इनर्ट गैस है, हीलियम, आर्गन, जेनॉन, तो ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द एटम एंड मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट आर दिस एटम एंड what are this atom and molecules. तो atom is the smallest part of an element, है ना. तो अगर हम लोग इस पे देखते हैं अगर हम लोग ये देखिए, अगर ये सपोज दिस डॉट इज़ एटम. बहुत सारे ऐसे एटम, दिस डॉट इज़ एटम. सपोज बहुत सारे ऐसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. अगेन दिस मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलके एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं. नाउ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स, ये दिस एलिमेंट्स है ना, और दिस एलिमेंट्स combine together to form an compound. Okay. And different type के compound mix together to form mixture. This is atom, this is molecule, this is element, this is compound, and this is mixture. Okay. Now एटम. तो सबसे स्मॉलेस्ट, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है एलिमेंट, ठीक है, वो होता है एटम. एंड ये जो होता है इट पोसेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ, वो उस पे जो उस एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टी होती है और वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है. एटम की कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट एट फ्री स्टेट, फ्री एटम, ठीक है. एटम ऑफ एन, और एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. तो अगर हम ये कहें कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट है तो वो गलत है, क्योंकि एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, डेट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नाउ
एटम्स मेंटेन द प्रॉपर्टी, जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वही एटम की प्रॉपर्टी होती है। अगर मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं तो ग्रुप, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड कह सकते हैं जो एक इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता है एंड सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या क्या फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड हैज़ atom of different element combining fixed whole number ratio. They are formed by the combination of atom at same element or different element, and the atom in the molecule are held together. एक bond होता है that is called chemical bond. ये atom ही chemical reaction में participate करते हैं. Molecules of an substance can be represented by the molecule formula. Okay. सो अगर डिफरेंस बिटवीन देखा जाए मॉलिक्यूल और एटम में तो ये होगा, लुक एट द स्क्रीन नाउ, दिस सम कंपाउंड्स आर गिवन हियर एंड देयर केमिकल फार्मूला आल्सो, एंड हाउ मेनी एटम कंटेन इन दिस कंपाउंड। ये एटम्स कंटेन इन द गिवन कंपाउंड। जैसे जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड ZnCl the chemical formula, and Zn तो zinc 1 and chloride 2 Cl2, तो 2 atom of fluorine और 1 atom of zinc. Calcium oxide CaO, here the calcium oxide CaO only, तो calcium 1 and oxygen 1. ammonia नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन NH3 फार्मूला है, तो N जो है 1 है और H3 है, मतलब H जो है वो 3 है। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो Al is 1 and Cl is 3. Okay, now learn this compound name, their chemical formula and how many atoms present in the compound. Now come to the compound. So what is this compound? So substance made up of atom for two or more elements combine chemically. Okay, these are compound. जब बहुत सारे elements जो हैं more than 2 compounds मिलते हैं तो क्या बनाता है? That is compound. Now अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं कंपाउंड के, तो एलिमेंट्स आर नॉट ईजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन एंड द कंपाउंड्स हैज़ प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट, डिफरेंट होता है ना। हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। रेशियो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। फिक्स नंबर, जैसे हम लोगों को H2O, तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए, तो तभी हाइड्रोजन की 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए, तभी हमारा वाटर बनेगा H2O। सो अगर हम हाइड्रोजन का भी 2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन का भी 2 लेते हैं, H2O2 बन जाता है, कंपाउंड ही चेंज हो गया। तो हमको फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए कंपाउंड बनाने के लिए। ओके, so these are some properties. Now come to the mixture. So अब what are the differences between compound and mixture? So when elements are mixed in fixed ratio, this is called compound. But when elements are mixed in indefinite ratio, तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर। ठीक है, जब हम इनडेफिनिट रेशियो में चीज़ों को मिलाते हैं तो मिक्सचर कहलाता है। इंडिविजुअल कंपाउंड ऑफ मिक्सचर जो है उसका प्रॉपर्टी मेन जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। अब इस मिक्सचर जो है उसको सेपरेट करने के लिए भी बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस है, जैसे विनोइंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन। ओके,
These are the difference between compound and mixture. Compounds are chemically combined, mixture chemically mixed, मैंने mechanically fixed ratio होता है, इसमें indefinite ratio होता है. Compounds can not be separated by physical process, but mixture को हम physical process वो कर सकते हैं, मतलब मिक्स सेपरेट कर सकते हैं. कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी और कंपोनेंट्स रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी. इसमें जो है कंपोनेंट अपने ओन प्रॉपर्टी पे जा सकता है, डू नॉट रिटेन नहीं मिल सकता उसको, मगर इसमें मिक्सचर में उसको दे सकते हैं हम उसके ओन प्रॉपर्टी. ओके, नाउ I think this chapter is completed. If you have any doubt, please ask me. Okay, thank you.